تمام لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ ہاوڑہ کے ٹکیا پاڑا کے مچھلی بازار میں علماء اسلام کی جانب سے فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیے جانے کے خلاف پوری دنیا کے ساتھ ساتھ یہاں بھی احتجاج اور مظاہرہ کیا گیا اور فرانس کے سامانوں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ یہاں موجود علماء کرام نے فرانس کے ساتھ بی جے پی کی قیادت میں چلنے والی مودی حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے اور مذمت کی۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر موجود علماء کرام اور علاقے کے لوگوں نے کیا کہا۔ میکرون نے جو کچھ بھی ابھی قدم اٹھایا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف اس کا قدم نہیں ہے۔ مسلمان جس نبی کے اوپر اپنی جان فدا کرتے ہیں اس نبی کی شان میں اس نے گستاخی کیا ہے، اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کا کوئی بھی مسلمان ہو وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کہ ہمارے مذہب میں یہ بات عام ہے، بھلے لوگ اپنی تصویر کھنچوا لیتے ہوں یا دوسروں کی تصویر کھینچ لیتے ہوں، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تصویر کو گھر میں آویزاں کر کے رکھے ہوں، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر تصویر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتارنے کی اجازت ہوتی تو ہم اپنے گھروں میں اپنے گلے میں ٹانگ کر کے اس کو رکھتے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو نبی کی تصویر کو اپنے ساتھ نہ رکھے، مگر نبی کی تصویر اتارنا حرام، اشد حرام، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ نبی کی شان میں گستاخی تصویر بنا کر کے آدمی کرتا ہے یہ تو ایک پوائنٹ ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ گرا ہوا معاملہ ہے کہ گستاخانہ خاکہ تیار کیا گیا، کارٹون تیار کیا گیا، اور جانتے ہیں کہ کارٹون میں کیا ہوتا ہے، ایسی شکلیں دکھائی جاتی ہیں جس سے دیکھنے والے کو ہنسی آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر انسانیت کا پیغام پہنچایا تھا، تو اس کا بدلہ کیا یہی تھا؟ بلکہ میکرون کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ساری قوم کے رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے رہنما کی اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کے ان کو بھیجا ہے۔ آپ ہم سے قریب ہو جاؤ، پھر سمجھو ہمارا اسلام کیا ہے، پھر سمجھو ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ آپ ہم سے دور رہ کر کے ہمیں نہ سمجھ سکتے ہو، نہ ہمارے نبی کی ذات کو سمجھ سکتے ہو۔ آپ قرآن پڑھو، حدیث پاک پڑھو، علماء کرام کا بیان سنو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے نبی کی نعت سنائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کھولو، بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں 30 پارے نازل فرمائے۔ تو قرآن کو حق اگر جانتے ہو تو قرآن پڑھ لو، اس نبی کی شان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو جس کی شان کو تم جانتے نہیں تو پھر ان کے خلاف شرانگیزی کر کے تم کیا دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہو؟ تو اس احتجاج کے ذریعے ہم اپنی بیداری کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم سوئے نہیں، بیدار ہیں، اور مذمت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کی پارٹی، ملک کی حکمراں جماعت یعنی بی جے پی پارٹی کو، اور خاص کر پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ 35 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے ایک میکرون کے گندے قدم اٹھانے کی وجہ سے، لہٰذا وزارت خارجہ اپنا پاور استعمال کرے اور ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے جو احتجاجات ہو رہے ہیں یہ میسج پہنچے فرانس تک، اور ان کو باور کرایا جائے کہ تمہارے ایک قدم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا دیا ہے، لہٰذا اس قدم کو اٹھا لو اور اس سے توبہ کر لو، اور آئندہ ایسا ناپاک قدم نہ اٹھانے کا تہیہ کر لو، یہ ہماری مانگ ہے۔ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا، جو لوگ نیشنل میڈیا دیکھ رہے ہیں، جیسے جو چینل لگاتار 24 گھنٹہ کوریج کر رہا ہے، آج کل یہ ساری چیزیں میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پروپیگنڈے کا شکار ہوتی ہے۔ لوگ بہت مبارکباد کے لائق ہے آپ جیسے یوٹیوبر لوگ جو اپنا چینل چلا کر کے سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ میڈیا کچھ اور دکھا رہا ہے۔ میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان فرانس کے دہشت گردوں اور شدت پسند لوگوں کے سمرتھن میں احتجاج کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ کسی شدت پسند یا دہشت گرد کے سمرتھن میں احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس گستاخی کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے میڈیا بڑی آسانی سے اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ میڈیا اب ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہو گیا ہے، میڈیا کی خبروں کا اعتبار نہیں۔ ہاں، جو لوگ ذمہ دار یوٹیوبر ہیں یا
या बिलखुसूस कुछ ऐसे चैनल बच गए हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं, लिहाजा उन चैनलों की ख़बरों का एतबार करें, वरना टीवी पर कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप लोग उससे देख करके अपने माइंड को चेंज ना करें। हम किसी दहशतगर्द का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ होने वाली गुस्ताखी पर आवाज़ उठा रहे हैं। और जब तक दम में दम है, अगर कोई भी इस तरीके की बदतमीज़ी करेगा तो हम लोग खड़े होते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज मजलिस उलमा इस्लाम टिकियापाड़ा की जानिब से फ़्रांस की हुकूमत के ख़िलाफ़, जो फ़्रांस की हुकूमत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून के हिमायत पर मैक्रोन ने जो ऐलान किया और 18 या 20 तल्ला इमारत पर उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को लगाया। आज टिकियापाड़ा के तमाम उस्साकान और तमाम उलमा इकराम मिल करके उसके ख़िलाफ़, उसके प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ बाइकाट का ऐलान करते हैं। और मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की इहानत, अपने नबी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यकीन कामिल है, आज हम ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत है, मोदी हुकूमत, हम उससे कहना चाहते हैं कि आप आज हिंदुस्तान में अगर फ्रांस के सदर मैक्रोन के ख़िलाफ़ हो रहा तो आपको तकलीफ़ हो रही है। आज पूरी दुनिया के रहबर इस्लाम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। यहाँ 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनकी तकलीफ़ हो रही है, आपको एहसास नहीं हो रहा है। आप एक मैक्रोन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आपकी हुकूमत में, आपके मुल्क में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, इनकी दिली तकलीफ़ हो रही है कि यहाँ के मुसलमान अपने नबी के, आप गालियाँ मुसलमानों के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं बोलता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के नबी के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं कर सकते हैं। एक डिबेट हो रहा था, उसमें किसी ने कह दिया क्या कोई किसी के खिलाफ बोले तो आप उसको मार देंगे। तो हम कहते हैं हमारे खिलाफ कोई बोले हम कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला जाएगा हम उसका गर्दन उड़ा देंगे। मुसलमान मरने से नहीं डरता, अपने नबी, अपने वतन के नाम पर अगर आए, अपने मजहब के नाम पर आए, मुसलमान मरने से नहीं डरता, गोली खाने से नहीं डरता। इसलिए हम कहते हैं गोली लगेगी सीने में, रूह पहुंचेगी मदीने में। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपने नबी की नामूस के तहत, अपने नबी के वक़ार के, अपने नबी पर, उनके इज़्ज़त वक़ार पे जो हमला मैक्रोन ने किया है, फ्रांस की हुकूमत ने किया है, हम उसके एहतजाज में, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर टिकियापाड़ा के उलमा और तमाम लोगों ने मिलकर एहतजाजी प्रोग्राम किया है। और हम ये बाइकाट करते हैं फ्रांस के तमाम प्रोडक्ट के जितने प्रोडक्ट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं कि कम से कम उसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल ना करें। आज लोग कहते हैं कि यहाँ से बोल करके, यहाँ से 2-4 लोग इस्तेमाल करके, बोल करके, एहतजाज करके क्या कर सकते हैं फ्रांस के। हम कहना चाहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो नमरूद जला रहा था, एक जानवर जिसे मेढक कहा जा रहा था, मुँह में पानी लेके जा रहा था, किसी ने कहा मेढक तू पानी लेके जा रहा है, मनो टनो लकड़ियाँ जल रही है, इससे क्या होगा। मेढक ने कहा जब लोग पूछेंगे कम से कम हमें नबी की हिफाजत करने में मेरा नाम आ जाएगा। हम इतना कह सकते हैं, हम मैक्रोन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं ताकि हमारा नाम गुलाम मुस्तफ़ा में शरीक हो जाए। टिकियापाड़ा के तमाम लोग शरीक होकर ये बता रहे हैं, जान जाए तो जाए, नबी की नामूस नहीं जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं उसका नाम है मज़हब इस्लाम, और हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता है, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को कभी भी भला बुरा नहीं करता है, हमारा दीन नहीं सिखाता है। लिहाजा हम लोग आज तक कभी भी, चूँकि मुसलमान मज़हब इस्लाम दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी है मुसलमान है, कभी कहीं किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी मज़हब के लोगों के बारे में हम लोगों ने कभी भी गुस्ताख नहीं किया। लेकिन ये फ्रांसीसी हुकूमत, फ्रांस के सदर मैक्रोन, जो इन्होंने गुस्ताखी रसूल का, जिन लोगों ने गुस्ताख किया, उनका समर्थन कर करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कहीं ना कहीं जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनका मज़हब उन्हें वही सिखाता है। लिहाजा हम मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तौहीन सरकार, तौहीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन हमारे मज़हब इस्लाम हम कभी ज़िंदगी में ना तो बर्दाश्त किए ना बर्दाश्त करेंगे। हम अपने तरीके से हमेशा एहतजाज करते आए हैं इन तमाम तर बातों का, और एहतजाज करते रहेंगे। और आइंदा भी हम अपने पुरजोर तरीके से जब हमें मौका मिलेगा, इस तरह के लोगों को जो हमारे मज़हब को
रुसवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो गुस्ताखी कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा आवाज़ इसी तरह से उठता रहेगा। हम उनके विरोध में खड़े रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। जिस तरह से आज हमारे उलमा इकराम ने आज यहाँ पर एक प्रोग्राम करके गए, उन्होंने ये जाहिर किया, अपना गम और गुस्सा को जाहिर किया और इलाके के लोगों को सबके बीच में ये अपने अपने बातें उन्होंने रखा कि हम लोगों को किस तरीक़ा से ऐसे लोगों का मुकाबला करना है। लिहाजा फ्रांसीसी प्रोडक्ट, ये मैं भी ये अपील करता हूँ कि फ्रांसीसी प्रोडक्ट जो कुछ भी है, और जहाँ तक जानकारी आप लोगों का कि कौन सा प्रोडक्ट फ्रांसीसी है, उसका बाइकाट किया जाए और हम लोग इसी तरीक़े से उसका जो है बाइकाट करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज जो फ़्रांस में जो वाक़यात हुए ये काबिल मज़म्मत है और मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात, पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी मज़म्मत करता है और साथ ही साथ इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं हमने कसम खाई है कि इनके प्रोडक्ट्स को, ख़ास करके लॉरियल और गार्नियर, इस प्रोडक्ट को हम लोग इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बॉयकॉट करेंगे और कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब तक ये मैक्रोन जो फ्रांसीसी सदर है, जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेता, अपॉलोजी नहीं व्यक्त कर लेता, तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। मुफ्ती साहब ने और मौलाना सखावत हुसैन बरकाती साहब ने कहा है कि ये अगर गुस्ताखी से बाज नहीं आया और अपने रास्ते पे डटा रहा तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा जुलूस निकलेगा और ये जुलूस चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक जाएगा, नवन्नों तक जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसलिए कि ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यहाँ पर राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, एनी रिलीजन, और हमें ये हक़ बनता है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक़ दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अपने मज़हब पर कायम रह सकें। लेकिन किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा लेकर, का प्लेटफॉर्म लेकर आप किसी मज़हब को टारगेट नहीं कर सकते हैं। और अगर टारगेट आप लोग करते हैं किसी मज़हब को तो ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि सब मज़ाहिब यहाँ पर मिलकर रहते हैं, मोहब्बत के साथ, गंगा जमनी तहज़ीब के साथ रहते हैं। यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की बका इसी में है, हम सब की बका इसी में है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहें। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून का है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।